Hello students, let us continue the topic of improvement in food resources. In this video, we will learn about animal husbandry. This is a really small topic, but you can expect a number of small questions from this topic. So basically, it is an important topic. So animal husbandry, first of all, let us define what is animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of animal livestock, which includes various aspects such as feeding, shelter, breeding, and disease control. Now, animal-based farming includes cattle, goat, sheep, poultry, fish, and beekeeping. Now, these are the elements of animal husbandry. We will see one by one. First of all, let us start with the cattle farming. Cattle farming, first of all, let us try and answer one question, that what is the need to practice animal husbandry? Why we need to do animal husbandry? Animal husbandry is important because we know that our population, it is growing in size day by day. The population is increasing. As the population is increasing, the demand for food products is also increasing. So in order to meet the demand for these increasing food products, we need to farm more and more animals. We need to do animal husbandry. So animal husbandry यानी पशुपालन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस यही है स्टूडेंट्स कि दिन पर दिन हमारी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके खाने पीने का जो डिमांड है वो भी बढ़ रहा है, और उनको पूरा करने के लिए हमें ये एनिमल हस्बेंड्री करना पड़ता है. तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैटल फार्मिंग से. कैटल फार्मिंग, जैसा कि आप जानते होंगे, इसमें कैटल्स की फार्मिंग की जाती है. इसमें काऊ हो सकता है, फैलोज हो सकते हैं. तो कैटल फार्मिंग बेसिकली इसका दो पर्पस होता है. कैटल फार्मिंग हम लोग करते क्यों हैं? इट इज बेसिकली फॉर टू पर्पसेस. व्हाट आर दोज टू पर्पसेस? फर्स्ट इज for dairy products and second is for farm labors. Now what includes dairy products? You already know, milk and milk products. So such animals or such cattle which are used to give dairy products or which can produce dairy products, they are called milch animals. And such animals which are involved in farm as a farm laborers, they are called as draught animals. So cattle farming में दो तरह के animals आते हैं, एक तो milch animals और दूसरे draught animals. Milch animal हम उनको कहते हैं जिनसे हमें डेयरी और डेयरी प्रोडक्ट्स रिसीव होता है, और draught animal हम उनको कहते हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल फील्ड में, फार्मिंग में यूज कर सकते हैं. वो एज ए लेबर एक्ट करते हैं. एज ए लेबर कैसे एक्ट करते हैं? सो दे हेल्प इन टिल्टिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग. Now let's come to milch animals. Milch animals जो हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है फीमेल के लैक्टेशन पीरियड पे. ओके, सो हियर ऑल्सो वी विल सी द क्रॉस स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन. Now what is cross species hybridization? In previous videos also we have learned that if there are two breeds with different special characteristic, so we can perform their cross breeding so that as to get the desired breed. For example, the cattles, the foreign breed cattles, they are very good in yield of milk, and the Indian breed cattles, they are very good in showing resistant to the diseases. So अगर इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट ब्रीड ऑब्टेन होगा उसके पास दोनों कैरेक्टर्स होंगे, मतलब उसकी यील्ड भी अच्छी होगी और उसका डिजीज के लिए रेजिस्टेंस भी अच्छा होगा. तो कैटल फार्मिंग में हम लोग ऐसा हाइब्रिडाइजेशन करवा के ऐसे डिजायर्ड ब्रीड्स को अपने यूज में ला सकते हैं. तो सो फॉर एग्जांपल सम फॉरेन ब्रीड्स का नाम हम लोग जैसे जानते हैं जर्सी, ब्राउन स्विस, जर्सी जिसे कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन भी कहते हैं, और कुछ इंडिजीनस ब्रीड के भी नाम हम लोग कुछ जानते हैं जैसे कि सिंधी और साहिवाल. तो ये दोनों कैटल्स जो हैं, एक फॉरेन ब्रीड की है और एक इंडियन ब्रीड की है. इन दोनों का अलग अलग कैरेक्टर है. जो फॉरेन ब्रीड वाले कैटल्स होते हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क का यील्ड करने की कैपेसिटी जो है वो हाई होती है, और जो इंडियन ब्रीड के कैटल्स होते हैं उनका डिजीज रेजिस्टेंट अच्छा होता है. तो अगर इन दोनों की हम क्रॉस ब्रीडिंग करवा दें तो उससे जो हमें रिजल्टिंग ब्रीड मिलेगा उसके पास ये दोनों डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक होंगी. ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. Now the next question is, what are the requirements for cattle farming? Cattle farming की requirements क्या क्या हैं? तो first of all, cattle farming की requirements क्या क्या हैं? तो we need proper cleaning and shelter facilities for cow and buffaloes. Why we need
proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes, because it is very important to keep these animals, keep these cattle in good health. अगर वो good health में रहेंगे तभी तो उनका मिल्क प्रोड्यूस करने का यील्ड जो है, मिल्क यील्ड अच्छी होगी. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रॉपर क्लीनिंग और शेल्टर फैसिलिटीज़ दें इन कैटल्स को. दूसरी चीज़, these animals require regular brushing. रेगुलर ब्रशिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? In order to remove the dirt and loose hair. And also they should be sheltered under well ventilated roofed shed that protect them from rain, heat and cold. The floor of the cattle shed needs to be sloping so that it stay dry and facilitate cleaning. कैटल्स को हम जहाँ रखते हैं वो जो जगह है, वो जो शेल्टर प्लेस है, वो वेल इल्यूमिनेटेड होना चाहिए. वहाँ पे लाइट आनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, और उसका जो फ्लोर है वो स्लोपी फ्लोर होना चाहिए. स्लोपी फ्लोर क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्लोपी फ्लोर अगर रहेगा तो उससे वो कैटल का जो शेल्टर है वो ड्राई रहेगा, वहाँ पे पानी नहीं रुकेगा, और ड्राई होने की वजह से वहाँ की सफाई जो है वो हम इजीली कर सकते हैं. इट विल फैसिलिटेट इन क्लीनिंग. सो दीज आर सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैटल कीपिंग. नाउ द नेक्स्ट इज food requirements. Now what are the food requirements for cattle? The food requirements of dairy animals are of two types. First is the maintenance requirement, which is food requirement to support the animal to live a healthy life, and the second is milk producing requirement, which is the type of food required during the lactation period. Now what are the animal feeds? हम लोग एनिमल्स को देते क्या है? फर्स्ट इज वी गिव देम रफेज यानी कि लार्ज फाइबर्स, एंड वी ऑल्सो गिव देम कंसेंट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर. इस पे ध्यान दीजिएगा, विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. सो ये होता है हमारे कैटल्स के लिए एक बैलेंस्ड डाइट. इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इसमें सबसे पहले इंक्लूडेड होता है रफेज जो लार्ज फाइबर्स होते हैं, एंड सेकेंड होता है ऐसे कंसेंट्रेट जिनमें फाइबर कंटेंट लो हो और उनमें हाई न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट हो. सो दिस इज द बैलेंस्ड डाइट फॉर कैटल. अगर ये बैलेंस डाइट हम उनको देते हैं तो उससे उनका क्या होगा? इससे उनका लैक्टेशन पीरियड बढ़ जाएगा, एंड वी नो दैट लैक्टेशन पीरियड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. जितना ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड होगा उतना ज़्यादा हमें मिल्क मिलेगा. सो दिस वॉज अबाउट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैटल. द नेक्स्ट एंड लास्ट इज कैटल प्रोटेक्शन. अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी, जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग फार्मिंग करते थे तो वहाँ भी हमें क्या करना होता था? अपने फार्म के क्रॉप्स को डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ता था, या उनका प्रोटेक्शन करना पड़ता था, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. अब यहाँ पे कैटल्स हैं तो उनके अंदर भी डिजीज होगी, तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दोज डिजीजेस. नाउ कैटल्स में कैसी डिजीजेस होती हैं? तो कैटल्स में दो तरह की डिजीजेस होती हैं. फर्स्ट इज फ्रॉम एक्सटर्नल पैथोजेंस एंड सेकंड इज फ्रॉम इंटरनल पैथोजेंस. ऐसे पैथोजेंस जो एक्सटर्नली कैटल्स को अफेक्ट करते हैं वो उनमें स्किन डिजीज कॉज कर सकते हैं, और ऐसे पैथोजेंस जो इंटरनली कैटल्स को अफेक्ट करते हैं वो उनके अंदर उनकी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे उनके स्टमक को, उनकी लीवर को, उनके इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर सकते हैं. तो ये दोनों पैरासाइट्स डिजीज कॉज कर सकते हैं हमारे कैटल्स के अंदर. ओके, तो इससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके मेंटेनेंस पे ध्यान देना चाहिए. वी शुड अगेन द सेम थिंग, वी शुड प्रोवाइड अ प्रॉपर शेल्टर, अ क्लीन हाइजीनिक शेल्टर विथ प्रॉपर सैनिटेशन, वेल वेंटिलेशन, so that we should provide them with balanced diet, so that if they are in good health and good cleanliness तो उनके में ये पैरासाइट्स के अटैक करने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी. एंड द नेक्स्ट, कैटल्स एक साथ रहते हैं तो दे ऑल्सो सफर फ्रॉम सम इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द इन्फेक्शियस डिजीजेस इन कैटल? इट इज वैक्सीनेशन. So by following proper vaccinations, they can be immunized against a number of pathogens like bacteria, virus and fungi. So in this way we can protect our cattle from diseases. So this was about the protection of cattle from diseases.
And in short, it was all about the cattle farming. In our next video, we will learn about the poultry farming, which is also a very important topic. Till then, make a short note on cattle farming, write a short note on animal husbandry, and keep reading the chapter, the improvement in food resources. Thank you.